السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم ریڈ کریں گے ہاتھ سے محبت کے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 10۔ سو لیٹس اسٹارٹ دس امیزنگ ناول۔ مسلسل 10 دن تک ہاسپٹل رہنے کے بعد انایا کی طبیعت میں کچھ سدھار آیا تھا۔ ایک قیامت تھی جو انایا کی فیملی پر گزر رہی تھی۔ انایا کی شخصیت تو مسخ ہو کر رہ گئی تھی، نہ ہنستی تھی نہ بولتی تھی۔ جب سب یاد آتا تھا چیخیں مارنے لگتی تھی، چیزیں توڑنے لگ جاتی تھی یا اپنی جان لینے کی کوشش کرتی تھی۔ اس لیے صدیقی صاحب نے سوچا تھا سائیکیٹرسٹ سے علاج کروایا جائے، کیونکہ اسے ذہنی بیماری تھی نہ کہ جسمانی۔ حمزہ ہر قدم پر انایا کی فیملی کے ساتھ تھا، بلکہ حمزہ ہی نہیں، اس کی پوری فیملی ساتھ تھی۔ شہیر کی والدہ بھی انایا کے ساتھ تھی، لیکن وہ کسی طرح سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ چند دن میں ہی انایا کے ڈیڈ بوڑھے نظر آنے لگ گئے تھے، اور اپنے ڈیڈ کو دیکھ کر تو وہ اور زیادہ پینک ہو جاتی تھی، اس لیے وہ سامنے نہیں جاتے تھے۔ وہ اسی آس پہ رہتی تھی کہ کبھی تو شہیر آ کے کچھ تسلی کے لفظ بولے گا اس سے، لیکن ہر روز اس کا انتظار ہی رہتا تھا۔ شہیر نہ آتا تھا اور نہ ہی آنا تھا اسے، اس لیے آج اس نے پھوپھو سے پوچھ ہی لیا تھا، پھوپھو کیا شہیر کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا؟ کیا اسے مجھ پر بھروسہ نہیں؟ جبکہ پھوپھو نظریں چرا گئی۔ وہ کیا بتاتی انایا کو کہ حالت تو اس کی بھی ٹھیک نہیں، ہر وقت غصے میں رہتا ہے، اسموکنگ کرنے لگ گیا ہے، رات جاگ کر گزارتا ہے اور آفس میں روز کسی نہ کسی پر اپنا غصہ نکالتا رہتا ہے، لیکن اسے انایا پر یقین نہیں اور نہ ہی وہ اب انایا کا نام سننا چاہتا ہے۔ انہوں نے بہت سمجھایا پر وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے بس جو دیکھا اسی کو سچ مانتا ہے۔ بیٹا وہ بزی رہتا ہے، کوئی پروجیکٹ میں بزی ہے، فری ہوگا تو آئے گا، پتہ ہے نا وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، تم سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا، تم فکر مت کرو۔ انہوں نے انایا کا دل بہلایا۔ پکا نا پھوپھو، آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ جبکہ انایا کی بات سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو کہ انہوں نے چھپائے اور بات بدل دی۔ چلو بیٹا تھوڑا باہر نکلو، اپنی روٹین پر واپس آؤ، یہ حادثہ تھا، اسے حادثہ سمجھ کر بھول جاؤ۔ کیسے بھول جاؤں پھوپھو، اس حادثے نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ میں ڈیڈ کو فیس نہیں کر سکتی، میری وجہ سے کتنی ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے انہیں۔ میں جب بھی انہیں دیکھتی ہوں تو ان کا نقصان یاد آتا ہے، سالوں کی کمائی ہوئی عزت مٹی میں مل گئی ان کی۔ میری بد دعا ہے عمر کو وہ کبھی خوش نہ رہے، اللہ اس سے میرا حساب لے۔ وہ ایک طوفان بن کر میری زندگی میں آیا اور سب کچھ بہا کر لے گیا، میرے سارے اپنوں کو مجھ سے دور کر دیا۔ اور پھوپھو موم سے بول دیں وہ حمزہ کو منع کر دیں کہ اب وہ مجھ سے نہ ملا کرے، میری وجہ سے بہت نقصان ہو چکا ہے اس کا، میرے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑا جا رہا ہے۔ اس کو بولیں وہ ارہا کے ساتھ خوش رہے، مجھے بھول جائے، جو بھی میرے ساتھ رہے گا وہ خوش نہیں رہ سکے گا۔ انایا کو ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ ارہا حمزہ کو چھوڑ چکی ہے، اور پھوپھو خاموش ہو گئی، انہوں نے کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ انایا اپنی پھوپھو کے ساتھ باہر ڈنر کے لیے آئی تھی، سب اسے دیکھ کر خوش ہوئے تھے، کیونکہ وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلتی تھی، بس کھانا بھی برائے نام ہی کھاتی تھی، وہ بھی کمرے میں۔ زبردستی پھوپھو اور اس کی موم اس کو کھانا کھلاتی تھی۔ اس واقعے کو 2 مہینے ہو گئے تھے، لیکن انایا کی زندگی وہی رکی ہوئی تھی۔ آج پھوپھو کے بہت سمجھانے بجھانے پہ وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ثانیہ نے انایا کو ساتھ بیٹھنے کو کہا تھا، وہ بیٹھ گئی اور خالی نظروں سے سب کو دیکھتی رہی۔ ثانیہ اور نیہا انایا کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی۔ ابھی چند ہی لقمے کھائے تھے کہ ملازمہ نے آ کر اطلاع دی کہ ساحر کے والدین آئے ہیں اور ساتھ ارہا بھی۔ انایا کے ڈیڈ فوراً اٹھے اور انہیں اندر بلایا۔ ثانیہ کا اس دوران ساحر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، اور اتنی ٹینشن کے دوران اسے کچھ سمجھ ہی نہ آئی تھی اور نہ ہی اس کا اس طرف دھیان گیا تھا۔ اب اس کے والدین کے آنے پہ ثانیہ کا دھیان ساحر کی طرف ہوا تھا۔ صدیقی صاحب بڑی گرم جوشی سے آگے بڑھے، لیکن انہوں نے نوٹ کیا کہ فرحان صاحب کا انداز پہلے جیسا نہیں تھا، بلکہ بہت سرد تھا، بیگانہ سا، جیسے وہ ان کو جانتے ہی نہ ہو۔ انہوں نے بیٹھنے کو کہا، جبکہ ارہا مسلسل انایا کو دیکھتی رہی تھی۔ ہم یہاں بیٹھنے نہیں آئے، بلکہ کچھ باتیں کرنے آئے ہیں۔ ہم ساحر اور ثانیہ کا رشتہ توڑنے آئے ہیں۔ اب مزید میں آپ کی فیملی سے کوئی رشتہ کہیں نہیں رکھنا چاہتا۔ جہاں ایک بیٹی بد کردار ہو سکتی ہے تو دوسری کا کیا بھروسہ؟
जबकि सानिया को लगा कि जैसे पिघला हुआ शीशा किसी ने इसके कानों में अंडेल दिया हो, और वो साकित नज़रों से फरहान साहब के चेहरे की तरफ दिखती रही जो इसे ये रूह फरसा खबर सुना रहे थे। तो क्या साहिर पहले कदम पर ही डगमगा गया था? सब वादे कस्में मोहब्बतें छूटी थी इसकी। ये आप क्या कह रहे हैं? रिश्ता तोड़ने की कोई वजह तो होगी। सदीकी साहब को अपनी ही आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। जबकि फरहान साहब ने इस्तरासिया इन्हें देखा। सदीकी साहब को, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या वजह है? ज़रा बाहर निकलें। आपकी नेक बेटी ने जो आपकी इज्जत के झंडे गाड़े हैं, आपको भी पता लग जाएगा। बस अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुनूंगा मैं अपनी बेटी के बारे में। आपकी मेहरबानी जो आपने रिश्ता तोड़ दिया, वरना आपकी सोच जानने के बाद मैं खुद ये रिश्ता न रखता। जहाँ मेरी बेटियों की इज्जत नहीं, वह रिश्ता जोड़कर मैं करता भी क्या? कोई बात नहीं, ये आजमाइश भी हमारी ख़त्म हो जाएगी, और मेरी दुआ है आपको कभी भी बेटी का दुख ना देखना पड़े। सदीकी साहब ने नम लहजे में कहा, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। जबकि साहिर के डैड चले गए और समीना बेगम सानिया के पास आईं और साकित खड़ी सानिया को गले से लगाया और सर पर हाथ रखकर आगे चली गई। जबकि इरहा जाने से पहले अनाया के पास आई। अनाया ने आगे बढ़कर इरहा का हाथ थामना चाहा कि इरहा पीछे हो गई। अपने गंदे हाथों से मुझे मत छूना। तुम्हारे और हमज़ा के रिश्ते की असलियत मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, और अब मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी बातों में मैं नहीं आने वाली। देख लिया, तुम्हारे किए की सज़ा तुम्हारी बहन को मिल रही है। जहाँ एक बहन बदकिरदार हो, दूसरी बहनों को इसका कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है। आज एक का रिश्ता तो टूट गया तुम्हारी वजह से, और दूसरी का पता नहीं क्या बनेगा। तुम्हें तो मर जाना चाहिए कि तुमने अपनी अय्याशियों में अपने ख़ानदान को बदनाम करके रख दिया, और तुम्हारा बाप और बहनें किसी के सामने शर्म से सर नहीं उठा सकती। मैं तो हैरान हूँ कि तुम अभी तक ज़िंदा हो। इतनी सफा कैसे हो सकती हो? शहीर की ज़िंदगी ख़राब की, अपनी बहनों की, माँ बाप की। तुम्हारे तो साए से भी पनाह मांगनी चाहिए, और तुम्हारे जैसी बेटी को तो बचपन से गला घोंट कर मार दिया होता तो आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। और मेरे दिल को जो तुमने बर्बाद किया है हमज़ा के साथ मिलकर, बहुत जल्द तुम्हें इसका भी हिसाब देना पड़ेगा कि किसी के जज्बात से खेलना इतना आसान नहीं। हमज़ा और अरसलान, जो कि अनाया की खैरियत पूछने के लिए आए थे, उन्होंने इरहा की सारी बातें सुनी थी जो वो अनाया के साथ कर रही थी। जबकि हमज़ा को अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि पहले ही अनाया की जहनी हालत ख़राब थी। इस पर से इरहा की बातें। हमज़ा आगे बढ़ा और खींचकर थप्पड़ इरहा के मुंह पर मारा। जबकि इरहा तो हमज़ा की हिम्मत पर हैरान ही रह गई। मुझे लगा था कि उस दिन तुम्हारा वक्ती रिएक्शन और वक्ती गुस्सा था। तुम सोचोगी और समझ जाओगी, लेकिन तुम इतनी कम ज़र्फ़ निकलोगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं लानत भेजता हूँ अपने दिल और इन लम्हों पे, जब मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। तुम जैसी कमज़र्फ़ मेरी इतनी मोहब्बत के लायक ही नहीं थी। मैंने सोचा था तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन तुम इस लायक ही नहीं हो। अगर जो अनाया के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ होता तो कभी सोचा है क्या होता? लेकिन तुम जैसी ऐसा सोच भी नहीं सकती। हाँ, मैं नहीं सोच सकती ऐसा, क्योंकि मैं तुम दोनों जैसी अय्याश और बदकिरदार नहीं हूँ जो दोस्ती की आड़ में अपनी हवस पूरी करते रहें। इसलिए मेरे आईना दिखाने पे तुम्हें इतनी आग लग गई है। शट अप इरहा, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, वरना आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इंतज़ार करो, हमारी बेगुनाही की गवाही वक्त देगा, और मैं उस वक्त का शिद्दत से मुंतज़िर हूँ जब तुम मेरे पास माफ़ीनामा लेकर आओगी। लेकिन मैं उस वक्त तुम्हें मुआफ़ नहीं करूँगा। जबकि इरहा रोती हुई भाग गई और हमज़ा भी गुस्से से अनाया के घर से बाहर निकल गया। जब से अनाया की प्रेगनेंसी का पता लगा था, माहौल अजीब अफसरदा सा हुआ था घर का। सदीकी साहब की टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक साथ दो बेटियों का दुख इनकी कमर तोड़ गया था। ज़िंदगी तंग हो गई थी इन पे। इस दौरान अरसलान ने हमज़ा से बात की थी और इसे सच्चाई का पता लगा था। पहले तो इसे यकीन ही नहीं आया कि उमर ऐसा कर सकता है, लेकिन हमज़ा और अनाया के आंखों में सच्चाई नज़र आती थी, जिसे वो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर
कर सका। इसे तो अफसोस शहीर पर था जो अनाया का यकीन ही नहीं कर पा रहा था। इस मोहब्बत का भी क्या फ़ायदा जिसमें यकीन एतबार ही ना हो। वो बस सोचकर ही रह गया। उमर तो आस्तीन का छुपा हुआ सांप निकला। बचपन से साथ था लेकिन इसकी ऐसी खसलत होगी अरसलान के तो ज़हनो गमान में भी नहीं था। इसने तो शहीर की खुशियों को ही डस लिया। अरसलान जानता था कि शहीर ने अपने ऊपर बेहिसी का खौल चढ़ाया हुआ है, लेकिन अंदर से कितना दुखी था ये भी वही जानता था। और फिर इसी उम्र का रवैया भी याद आया जो वो अनाया को देखकर करता था। इसकी बातें कि अनाया बहुत खूबसूरत है, इसका अनाया को देखकर खोया हुआ अंदाज, इन सब बातों ने बहुत कुछ सोचने पर इसे मजबूर किया था। वो गर्लफ्रेंड्स आए दिन बनाता था लेकिन वो इस हद तक जाएगा ये तो कभी इसने सोचा भी नहीं था। वो मगरबी माहौल में पला बड़ा था, उधर लड़कियां भी ऐसे ही होती थीं, लेकिन फिर भी शहीर और अरसलान इसे समझाते थे। पर कहीं ना कहीं इन्हें ये भी यकीन था कि उमर किसी के साथ कभी कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन शहीर इसकी कुछ गलत हरकतों से वाकिफ़ था, जैसे क्लब जाना, ड्रिंक करना। इस चीज़ को वो आम समझता था। इस चीज़ का अरसलान को पता था। इसने बहुत दफ़ा रोका भी था पर वो नहीं रुका, तो अरसलान ने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन पाकिस्तान आके ये हरकत वो करेगा, इस चीज़ का अंदाज़ा अगर इसको होता तो वो कभी भी उमर को पाकिस्तान लेकर ना आता, ना वो अनाया को मिलता और ना ऐसे हालात पैदा होते। यूएस चला गया था वो, लेकिन इसने पाकिस्तान कोई राब्ता नहीं किया था। और अरसलान ने सोच लिया था कि वो एक दफ़ा ज़रूर शहीर को समझाएगा और उमर को भी अपना गुनाह कबूल करने पर आमादा करेगा, क्योंकि अगर वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो शहीर की आंखों से शक की पट्टी उतर जाएगी और फिर वो अनाया को कबूल कर ले ताकि कुछ तो इसके दुखों का मतावा हो। आज अनाया सानिया के कमरे में आई थी इससे मुआफ़ी मांगने, क्योंकि इसकी वजह से सानिया की खुशियाँ भी तबाह हो गई थी। और वो जानती थी कि सानिया साहिर से मोहब्बत करती थी। वो ख़ुद को सानिया का कसूरवार समझती थी। सानिया अनाया को देखकर फ़ौरन अपनी जगह से उठी। आप अंदर आए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं? अनाया छोटे छोटे कदम लेती अंदर आई। आपको कुछ चाहिए था आपी तो आप मुझे बताती, मैं आ जाती आपके पास। नहीं सानिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुमसे मुआफ़ी मांगने आई हूँ। मेरी वजह से सबकी ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई। डैड की तबीयत ख़राब रहती है, इनकी इज्जत मट्टी में मिल गई। मैं सोचती थी कि कुछ ऐसा करूंगी कि डैड का सर फ़ख्र से ऊंचा करूं, लेकिन मैंने तो इनके मुंह पे बदनामी की कालक मल दी और तुम्हारा रिश्ता भी टूट गया। तुम्हारी खुशियां निगल ली मैंने, पर कसम खुदा की सानी मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, बस मेरे साथ ये सब हो गया। इरहा ठीक कहती थी कि मुझे तो मर जाना चाहिए और मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, पर क्या करूँ? कितनी दफ़ा जान लेने की कोशिश तो कर चुकी हूँ, पर इतनी ढीठ हूँ मौत भी नहीं आती। जबकि सानिया अनाया की बातें सुनकर तड़प गई। ये कैसी बातें कर रही हैं आप ही? आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको इस सब का कसूरवार समझूंगी? ये सब हमारी किस्मत में था और आजमाइश है, और इसी आजमाइश की वजह से हमें ये पता लगा है कि कौन हमारे साथ मुखलिस है और कौन नहीं। और रही साहिर की बात, तो ये वक्ती अट्रैक्शन है आप ही, जो हमारे दरमियान रिश्ता है इसमें अट्रैक्शन हो जाती है। लेकिन आप फिक्र ना करें, जब मुझे कोई मुखलिस मिल जाएगा तो यही अट्रैक्शन इसके साथ भी हो जाएगी। और मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि शादी से पहले ही मुझे पता लग गया कि साहिर कहाँ तक मेरा साथ दे सकता था। अगर शादी के बाद पता लगता तो शायद मुझे संभलने में टाइम लग जाता, लेकिन अभी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम में कोई ऐसा रिश्ता था ही नहीं। इसलिए आप परेशान मत हों और जाकर आराम करें। मैं आराम नहीं कर सकती सानी, तुम लोगों को बेआराम करके। मेरा मनहूस साया ऐसा है कि अपनी फैमिली के साथ साथ हमज़ा की ज़िंदगी पर भी असर अंदाज हुआ है। मैं जानती हूँ कि वो कितनी मोहब्बत करता था इरहा से, कितने ख्वाब सजाए थे इसने इरहा को लेकर, लेकिन मेरी वजह से इरहा ने वही ख्वाब बेदर्दी से इसकी
आंखों से नोच लिए। इस सब की ज़िम्मेदार मैं हूँ, मैं जानती हूँ सब। और अब ये बच्चा जो कि मेरी बदकिरदारी का सबूत है दुनिया के सामने, लेकिन अब मैं और ज़िल्लत नहीं बर्दाश्त कर सकती इस वजह से, इसलिए मैं इसको ख़त्म कर दूँगी। और ये भी इस उम्र का गंदा खून है जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती अपनी ज़िंदगी में। जबकि सानिया ने अनाया को गले लगाया। आप फिक्र न करें आपी, एक दिन अल्लाह सब ठीक कर देगा। और सानिया जो दिल का दर्द दबाए बैठी थी, आंसुओं के ज़रिए बहाने का इसे मौका मिल गया। साहिर ने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी इसे इस मुकाम पर खड़ा कर देगी जहां वो अपनी ही खुशियों को अपने हाथों से तबाह कर देगा। एक तरफ बहन थी और दूसरी तरफ मोहब्बत, और आखिर में इसने बहन को ही चुना था। फरहान साहब ने इसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था इसके सिवा। इसे ऐसा लगता था जैसे इसका दिल धड़कना भूल गया हो, दुनिया की हर खुशी इस पर हराम हो गई हो। वो मुस्कुराता तो था अपनी फैमिली के सामने, लेकिन ये मुस्कुराहट बहुत खोखली थी इसकी। समीना बेगम साहिर की आंखों की उदासी बखूबी समझती थी, जो कि शायद इसके डैड को नज़र नहीं आती थी। एक वही तो थी जिनसे वो अपना गम हल्का करता था, लेकिन इस दफ़ा वो अपना दर्द दिल में ही दबाए बैठा था। इस दफ़ा शायद इसे गहरी चोट लगी थी। ज़्यादा बोलता तो वो पहले ही नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल खामोश होकर रह गया था। लेकिन वो अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। इनके शौहर जब ज़िद पे आते थे तो किसी की नहीं मानते थे, और इस दफ़ा तो मामला इनकी लाडली बेटी का था जिस पे वो किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन वो समझ नहीं रहे थे कि बेटी की वजह से वो बेटी की खुशियाँ छीन रहे हैं। समीना बेगम साहिर के कमरे में आई तो वह बासु आंखों पे रखे लेटा था। साहिर, अपनी मॉम की आवाज़ पर साहिर ने बाजू आंखों से हटाया और मुस्कुराकर इन्हें देखा। आए मॉम, आप इधर क्यों खड़ी हैं? मैंने सोचा मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया तो मैं इसे अपने हाथों से खिलाऊं। समीना बेगम ने साहिर के बाल संवारे हुए कहा। नहीं मॉम, मुझे भूख नहीं थी बिल्कुल भी, वरना मैं सबके साथ बैठकर खा लेता। ये कहते हुए साहिर ने अपनी मॉम की गोद में मुंह छुपाया ताकि वो इसकी आंखों की नमी और सुर्खी ना देख सकें। नहीं मेरी जान, थोड़ा सा खाना खाओ, मैं तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगी। मुझे पता लगा था तुम्हारी सेक्रेटरी से कि तुमने लंच में भी कुछ नहीं खाया। चलो उठो, शाबाश, थोड़ा सा खाना खाओ। अच्छा ना मॉम, खा लेता हूँ, अभी आपकी गोद में सुकून मिल रहा है मुझे। साहिर, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ बेटा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं लगेगा? तुम वही साहिर हो जो मुझसे अपना हर सुख दुख बांटते थे बेटा, और मैं भी वही तुम्हारी मॉम हूँ, बदल नहीं गई। मैं इरहा से पहले तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तुम उससे भी ज़्यादा अजीज़ हो। मॉम, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। मेरा दिल चीख चीख कर बस यही दुहाई देता है कि मैं कभी उसके बगैर खुश नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मैं दिल की पुकार पर कान नहीं धरता। लेकिन मैं क्या करूं मॉम, मुझसे ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। कभी मैं सोचता हूं कि वो एक ही तो नहीं दुनिया में, वो नहीं तो कोई और सही, लेकिन फिर भी दिल संभलता ही नहीं, बल्कि मुझ पर हंसता है। जबकि साहिर की आंखों के आंसू इनकी गोद में गिरते रहे जारी है। तो प्यारे रीडर, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। Thanks for watching this video.